Hello everyone. Um, so we are going to start our today's lecture number 3, that is an olive mess. So open your textbook, page number 10. On the page number 10, a simile is figures of speech. Similes use the word or as or like to make comparison between two things. Simile एक figures of speech है, वो कब यूज आता है दो दो चीज़ों के कंपैरिजन के बीच. as brave as lion, मतलब lion की तरह brave. as black as coal, like कोल की तरह, लाइक कोयल कोयल मतलब कोयला कोयला की तरह काला. द मार्केट प्लेस गोज लाइक अ बी हाइव्स, मतलब मार्केट में इतने लोग थे कि वो बी हाइव मतलब मधुमक्खी के जैसे दिख रहे थे. चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सिमिली गिवन बिलो. तो आप हमको क्या करना है, हमें ये बॉक्स में से वर्ड्स चूज करना है और इसमें से लिखना है कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपैरिजन इज बिटवीन, मतलब ये बताना है कि कंपैरिजन किसके बीच में. द बेडशीट वॉज एज वाइट एज स्नो. ओके, बेडशीट किसके जैसी वाइट है? स्नो, बिकॉज स्नो इज वेरी वाइट इन कलर. स्नो का कलर क्या रहता है? एकदम वाइट. सो द बेडशीट वॉज एज वाइट एज स्नो. द थीफ वॉज एज सिली एज फॉक्स. थीफ कैसा है? किसके जैसा? थीफ चोर को कंपेयर किया गया फॉक्स से. यहाँ बेडशीट के कलर को कंपेयर किया था स्नो से. सो इट इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स. दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हम उनसे क्या बोलेंगे? सिमिली. द मदर वॉज एज बिजी एज बी. मम्मी इतनी बिजी है जितनी बीज बिजी रहता है, लाइक हनी बीज. Okay, next is Ritu is as gentle as lamb. Okay. Fifth one, the father told his son to soar like an eagle. Okay. Sixth one, the box was as light as feather. Feather, feather. Her cheeks are red like a rose. The young boy was as slippery as a eel. Okay, so this is the words which is given to you and we have to write. ये words हमने जो bracket में हमको words दिए उसी में से लिखे. Now make meaningful sentences with the words given below. All the words related to speed. अब आपको हमें क्या दिया? ये 5 words दिया. ये 5 के वर्ड्स किस हमें क्या बनाना है? इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस. सो फर्स्ट वन इज पेस. पेस का मतलब अ सिंगल स्टेप टेकन व्हेन वॉकिंग. पेस का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस? लेट मी राइट हियर. यू कैन कॉपी you can write it down in your books. Okay, first one is pace. P-A-C-E, pace. Pace, the meaning of pace, a single, S-I-N-G-L-E, single, sorry, S-I-N-G-L-E, single, a single step, S-T-E-P, step, T-A-K-E-N, taken, a single step taken, W-H-E-N, when, walking. A single step taken when walking is known as pace. Pace का मतलब क्या है? A single step taken when walking. मतलब हमें ये इस तरीके से सेंटेंस बनाना है जिसका मतलब क्या होगा? A single step taken when walking. Pace. The second one is dart. D-A-R-T. Meaning of dart is a small pointed missile that cannot be thrown. Okay, that means a small pointed missile that cannot be thrown. Sorry, that can be thrown is the meaning of
डार्ट मीन्स मतलब हर जगह पढ़े रहना, या एक छोटी पॉइंटेड चीज़ जो हम फेंक सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोई भी पॉइंटेड चीज़ जो हम फेंक सकते हैं, पेपर हो, पेपर को पॉइंटेड करके लाइक एरोप्लेन बना के, सो इट इज़ नोन एज डार्ट. Okay, the third one is a guide. Okay, agile. A guide or agile, you can pronounce it as. Agile means able to move quickly. Able to move quickly. जल्दी से मूव करने को क्या बोलते हैं? Agile. Okay, able to move quickly. The fourth one is swift. SWIFT, swift. Swift means happening quickly, मतलब अचानक हो जाना, suddenly. जो कोई भी चीज़ अगर अचानक हो गई, suddenly हो गई, तो हम उसे क्या बोलेंगे? Swift. Happening suddenly और quickly. अचानक हो जाना और जल्दी हो जाना, इसे हम क्या बोलेंगे? Swift. We call it as swift. Then fifth one is rush. Okay. Rush means to move with urgent. Move with urgent haste. Okay. Move with urgent haste is known as rush. So these are the 5 words and the meanings. ये 5 words are उसके meanings. You write it down in your notebook. Okay. Now we will go back to the meaning. Here we are going to make the meaning. First meaning is a child takes pace after crawling. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा क्रॉल करने के बाद क्या करता, स्लोली स्टेप्स लेता. तो वो स्लोली स्टेप या फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज पेस. ओके. डार्ट द classroom was littered with paper dart. Okay, we call it as paper dart or paper ball. मतलब कि पूरी क्लास में पेपर डार्ट मीन्स पेपर के पेपर को पॉइंट करके फेंके गए थे. तो द क्लासरूम वॉज लिटर्ड विथ पेपर डार्ट. अ गाय राम was as a guy, agile or a guy, as a monkey. Okay. जब राम एकदम मतलब राम हर चीज़ के अगर अजाइल, इट्स मीनिंग इज लाइक क्विकली, मतलब जैसे मंकी एक प्लेस से दूसरी प्लेस क्विकली जंप करता है, उसी तरह राम भी ऐसे ही जंप करता है. ही वॉज ऑल्सो अ गाइड. स्विफ्ट, द water was very swift. Swift means it was running very quickly. सब waterfall होता है जहाँ से पानी बहुत प्रेशर से और बहुत जल्दी बहता, उसको हम क्या बोलेंगे? स्विफ्ट. रश, ऑलिवर rushed after her. ऑलिवर उसके पीछे क्या हुआ? रश किया मीन्स ही ran after her is known as rushed. Okay, so these are the words and these are the sentences. Okay, आप लोग sentences खुद से बना सकते हैं, no problem. You can make the sentence by your own. Just zoom the slide so that you can understand. Pace, a child takes pace after crawling. A child takes pace after crawling. The second one is start. The classroom was littered with paper dart. The classroom was littered with paper dart. Next one is
a guide. Ram was as guide as a monkey. Okay, here it is written monkey. Swift, the water was very swift. Swift, the water was very swift. Rush, Oliver rushed after her. Oliver rushed after her is the sentences of the meanings. ये sentences है, आप खुद से भी बना सकते हैं और you can copy it. Okay. Next we will go to the next page, page number 11, that is sentences. A sentence is a group of words that makes complete sense. It has two parts, a subject and predicate. The subject of a sentence is who or what is being spoken about. सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस जिसमें दो चीज़ें रहती है, एक तो वन इज योर सब्जेक्ट एंड अदर इज योर प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मतलब कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट. वॉट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. अब मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या बता, लाइक अगर गर्ल है तो शी इज अ गर्ल, तो गर्ल क्या हुआ, आपका प्रेडिकेट हुआ. लाइक फॉर एग्जाम्पल सुनीता इज गोइंग टू लंडन. सो सुनीता क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट हुआ. लंडन क्या हुआ, आपका इज गोइंग टू लंडन इज योर प्रेडिकेट, क्योंकि सुनीता आपकी क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि हम उसके बारे में बात करें और वो कहाँ जा रही, क्या कर रही, वॉट शी इज ईटिंग, वॉट शी इज हैविंग, ये हमें कौन बता रहा, वी आर एबल टू नो विद द हेल्प ऑफ प्रेडिकेट. हमको प्रेडिकेट की वजह से ये पता चलता है कि हमको सेंटेंस क्या बताना चाह रहा. द नेक्स्ट इज द मार्केट इज फार फ्रॉम माई होम. अब हम ऐसा लिखते द मार्केट, तो हमें पता चलता कि द मार्केट के बारे में क्या बोल रहे हैं. नहीं, अब हमें क्या पता चला, द मार्केट इज फार फ्रॉम माई होम, मतलब मेरे घर से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर है. सो मार्केट इज योर सब्जेक्ट. जू शुड नॉट हैव केजेस, मतलब जू के पास क्या नहीं होना चाहिए, केजेस नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज, अगर हम ये लिखते हैं, वी विजिटेड टू अ जू. ओके, वी विजिटेड टू अ जू, तो वी क्या होगा, आपका सब्जेक्ट. विजिटेड टू अ जू होगा प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट मीन्स वी, मतलब वो हमारे बारे में बता रहा, एंड हम कहाँ गए, क्या करें, वी विजिटेड टू अ जू, तो सो इट इज अ प्रेडिकेट. Next we will go to the part A. Circle the subject and underline the predicate in this sentence. ये sentence में आपको subject को circle करना है और predicate को underline करना. The first one is the cat hide under the sofa. The cat किसके बारे में बात हो रही है, cat. तो cat क्या हुआ, आपका subject. Hide under the sofa is your predicate. We are traveling to Delhi this weekend. We is your subject. Are traveling to Delhi is the predicate. Has Mr. Singh gone to the office? Mr. Singh is your subject. Gone to the office, predicate. The teacher told us to sit quietly. The teacher is your subject. Told us to sit quietly is your predicate. Are they planning to shift to a new house? Are they is the subject. Planning to shift to a new house is the predicate. Sentences are classified into 4 types: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. There are 4 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory sentence. So, what is assertive sentence? Assertive sentence are those that give information or declare something. assertive सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, मीन्स बताते हैं. दीज आर सेंटेंस स्टेटमेंट्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. इसे और क्या बोला जाता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, रमन इज गोइंग
out this weekend. Means Raman is going out. अगर हम इतना बोलते तो हमें पता चलता कि रमन बाहर जा रहा, लेकिन कब जा रहा, कहाँ कब जा रहा, ये पता चलता कि नहीं. तो दिस वीकेंड ये डिक्लेयर करता कि ये हफ्ते रमन बाहर जाने वाला है. दिस पास्ता इज डिलीशियस. दिस इज, ये पास्ता क्या है, एकदम डिलीशियस है, टेस्टी है. तो डिलीशियस क्या बता रहा है कि पास्ता कैसा है, उसका टेस्ट बता रहा है कि इट इज टेस्टी. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल. चिल्ड्रन खेल रहे, लेकिन क्या खेल रहे, फुटबॉल. इट मीन्स इट्स शोइंग व्हाट इट इज. ओके. Interrogative sentences are those that ask questions or makes an inquiry. Means interrogative sentences ऐसे sentences रहते हैं जिसमें question पूछते हैं, how, what, where, where are you going, what are you doing, what is your name, how are you. So these are the interrogative sentences. और जो inquiry करता है, like will you, the inquiry means where have you been, आप कहाँ से आ रहे हो. Like these are the question mark sentences. इसे हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर हाउस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, विल यू लाइक टू हैव सम, विल यू लाइक सम कॉफी, एक्सेट्रा. दीज आर द इंट्रोगेटिव sentences. Next we are going to imperative sentences. Imperative sentences are those that express a request, command or an advice. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो हमें रिक्वेस्ट बता दें कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, उन्हें एडवाइस दे रहे हैं. फॉर एग्जांपल, मे आई कम इन प्लीज़. अगर हम किससे पूछते क्या मैं प्लीज़ मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको रिक्वेस्ट करें. मैम प्लीज़ मे आई कम इन, सर प्लीज़ मे आई कम इन, इसका मतलब हम उन्हें रिक्वेस्ट करें. हम अगर हमें कोई बताए लीव इमीडिएट, यहाँ से निकल जाओ, मतलब वो क्या कर रहा है, कमांड करे कि यहाँ से चले जाओ. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सरसाइज डेली. अगर हमें कोई एडवाइस दे रहा, कोई हमें बता रहा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम उससे क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एडवाइस. मतलब हम उससे क्या बोलते हैं, एडवाइस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर दोज that express a sudden feeling. Exclamatory sentence means ऐसे sentences, this is your exclamatory mark. और exclamatory मतलब जो sudden, wow what a beautiful dog, wow what a nice scenery, मतलब हम कोई भी चीज़ देख के एकदम सडनली एक्सप्रेस हो जाते हैं, हमारा फेशियल पार्ट हम अच्छा फील करते, या फिर ज़्यादा बुरा या ज़्यादा अच्छा फील करते, तो हम वहाँ वो सेंटेंसेस को क्या पुट करते हैं, वी पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क. What a beautiful sight. There is a dog chasing me. मतलब एक डॉग है जो मुझे क्या कर रहा है, चेस कर रहा मीन्स मेरा पीछा कर रहा. सो इट इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर कोई कुत्ता हमारे पीछे आए, डॉग हमारे पीछे चेस कर, हम क्या हो जाते, एकदम डर जाते हैं, वी स्टार्ट रनिंग. सो इट इज द फियर. वो कौन सा एक्सप्रेशन है, डर, इज नोन एज फियर. तो हम उसको क्या पुट करते हैं, exclamatory mark. Okay, now next you have to classify this sentences into assertive, interrogative, imperative or exclamatory. So the first one is no one ready to go out now. No one is ready to go out now, so it is assertive. मतलब वो क्या बता रहे हैं हमें, कोई भी बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है. Have the reservation been done is question mark. Question mark is interrogative, so it is interrogative. Next, stay away from this matter means order. It is an imperative. मतलब वो क्या कर रहा, ऑर्डर दे रहा कि, कमांड दे रहा कि इस मैटर से दूर रहो. It is imperative. How brave the child is. So this is your exclamatory mark. So it is exclamatory. Please shut the door means request. It is imperative. So these are the type of sentences. Now we will go to the next part, that is D1. Complete the phrase before using collective noun, below using collective noun from the boxes. And dash of soldier, an army of soldier, a dash of stairs, a flight of stairs. Okay,
a dash of students, a class of students, a dash of musician, a band of musicians, a dash of bees, a swarm of bees. Here it will be swarm. A dash of stars, a constellation of stars. Okay, a dash of fish, a shoal of fish. A dash of judges, a bench of judges. So these are the collective noun and the blanks. Next, it is true or false. Mrs. Smith was going to the party. False. The children has prepared lunch. False. The domestic help had to clean the living room. No. Children make pastries. Children had to go to the market to buy pastries. False. The family decided to had baked sandwiches in the evening. False. Rose volunteered to prepare a mocktail. True. Okay. Next, we are going to start with the next poem, Wandering Singers. Okay. So, Wandering Singers, it is on the page number 16, poem वॉन्डरिंग सिंगर्स. वॉन्डरिंग मीन्स यहाँ वहाँ घूमकर गाने गाने को हम क्या बोलते हैं? वॉन्डर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चलते रहना और सिंग करते रहना. लाइक जैसे यात्राज होती तो वे पे रास्ते पे सिंग करते गाते गाते जाते लोग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉन्डरिंग. वेयर द वॉइस ऑफ विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फीट. जहाँ पर विंड की वॉइस हमारे वॉन्डरिंग फीट्स को क्या करती? बुलाती. थ्रू इकोइंग फॉरेस्ट एंड इकोइंग स्ट्रीट. मतलब फॉरेस्ट हो या स्ट्रीट हो, हम हर जगह. इकोइंग मीन्स जो बार बार आवाज़ गूंजती, हम उसको क्या बोलते हैं? गूंजने को क्या बोलते हैं? इकोइंग. जहाँ पे हम फॉरेस्ट के थ्रू भी जाते हैं और स्ट्रीट्स के थ्रू भी जाते हैं. विथ लिक्यूज इन आवर हैंड्स एवर सिंगिंग वी रूम. मतलब हमारे हैंड में क्या है? लिट्यूज. लिट्यूज मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके यू कैन सी इन द पिक्चर लाइक शी इज कैरिंग अ लिट्यूज मीन्स जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है. ऑल मेन आर आवर किंडर्स, द वर्ल्ड इज आवर होम. मतलब सारे मेन, हर इंसान हमारे क्या है? किंडर्ड है. मीन्स हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे ब्रदर्स है, सिस्टर्स हैं, और ये पूरा वर्ल्ड क्या है? हमारा होम है. आर लेज are of cities whose lustre is shed. हमारे जो लेज है, लेज मीन्स हमारे जो सॉन्ग्स है, जो सॉन्ग्स है, आर ऑफ सिटीज मतलब सिटीज पे. whose lustre मीन्स उसकी जो शाइन है वो मतलब जैसे ख़त्म होती जा रही है. हमारे जो सॉन्ग्स हैं वो सिटीज़ के ऊपर है और सिटीज़ की शाइनिंग के ऊपर है. द लाफ्टर एंड ब्यूटी ऑफ वुमेन लॉन्ग डेड. मीन्स वुमेंस की लाफ्टर, वुमेंस की हंसी और उनकी ब्यूटी क्या है? बहुत पहले ही ख़त्म हो गई, मर गई. द स्वर्ड ऑफ ओल्ड बैटल्स, द क्राउन ऑफ ओल्ड किंग्स. मतलब ओल्ड बैटल्स की जो स्वर्ड्स है और क्राउन है किंग के, ओल्ड किंग्स के. एंड हैप्पी एंड सिंपल एंड सॉरोफुल थिंग. हैप्पी सिंपल हैप्पी चीज़ें, सिंपल चीज़ें, और सॉरोफुल मीन्स सैडफुल थिंग्स. वॉट होप शैल वी गैदर, वॉट ड्रीम्स शैल वी सो. हमने क्या होप गैदर करना चाहिए, हमें क्या ड्रीम्स सो करना चाहिए, हमें क्या ड्रीम करना चाहिए. वेयर द विंड कॉल्स आवर वॉन्डरिंग फुटस्टेप्स वी गो. मीन्स हमें ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जहाँ हमें हवा बुलाती वहाँ हमारे फीट चले जाते हैं और हम वहाँ चलते जाते हैं. No love bites us steady, no joy bites us late. मीन्स हम किसी के भी लव बाइट से टेरी नहीं करते. मीन्स हम कहीं रुक नहीं जाते. अगर हमको कुछ पसंद आ गया या हमें कोई पसंद करने लगा है तो हम वहाँ पर रुकते नहीं, और ना ही हमें कोई खुशी हम वेट करती. तो वॉइस ऑफ विंड इज़ अ वॉइस ऑफ आवर फेट. मतलब जो हवा की वॉइस है वो हमारे फेट की वॉइस है. फेट मीन्स किस्मत. ओके. इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू.
you have to learn this poem and write it down in your book. Next, the words are given: wandering, traveling, aimlessly, मतलब बिना कोई एम के, बिना कुछ डेस्टिनेशन के, मीन्स हमको यहाँ जाना है या वहाँ कहीं पर भी पहुँचना है, ऐसा कोई एम नहीं रहता. वॉन्डरिंग करना मीन्स बस घूमते रहना. ल्यूट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार. ल्यूट क्या है? स्ट्रिंग जैसा इंस्ट्रूमेंट है, लाइक ऐसे दो प्लेट्स रहते हैं, बीच में स्ट्रिंग रहती है, थ्रेड रहती है, जिसके उसकी साउंड आती है जैसे कि गिटार की आती है. किंडर्ड, वंस रिलेटिव, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स. किंडर मीन्स हर कोई हमारा क्या, उनका क्या रहता है, रिलेटिव रहता, या हर जो भी उनके ग्रुप में इंक्लूड रहता वो अपना, वो उनका अपना बन जाता है, रिलेटिव बन जाता है. लेस, सॉन्ग्स. लस्टर, शाइन और रेडियंस, मतलब जो सिटीज में शाइनिंग है, जो मतलब जो कैप्चर करता हमको, हम नाइट लाइफ अच्छी लगती, डे लाइफ अच्छा लगता, तो ये लोग ऐसा कुछ नहीं सोचते. टेरी टू स्टे इन वन प्लेस. ओके, in the homework you will read the chapter daily, practice which is given in the slides, learn and write the poem wandering singers. You will write it 3 times and meaning of the poem 2 times. Okay, and we will stop our lecture here, and I will see you in the next lecture.